I wish a very good evening to respected parents, teachers, our respected principal ma'am, honorable guests and my dear friends. I am Rudul Kumbhar from grade 8. I am truly delighted to welcome you all to our annual gathering Arise Fest 2024. It is a great pleasure for us to have you here with us today. As we gather to celebrate this special occasion, I would like to take a moment to highlight the importance of a cause that is very close to our hearts, saving the environment. As we all know, the survival of our planet and the countless living beings that inhabit it are directly tied to the way we treat nature. By reducing the waste we send to landfills, we help protect animals and ensure that they can live and thrive in better environment. Our efforts to reduce carbon emissions have contributed towards a cleaner and safer atmosphere. At Arise, we truly understand the responsibility we bear towards nature, and it is with this awareness in mind that we have chosen to dedicate our Arise 2024 Fest theme to eco-friendly elegance. Through this theme, we aim to spread the message of environmental consciousness and encourage everyone to take small steps towards a more sustainable future. I hope that performances put up together by my friends inspire you and ignite a sense of responsibility within each one of us. Thank you for your presence and continued support. I sincerely hope that you enjoy the show and carry forward the message of environmental awareness with you. Let us all be the change we wish to see in the world. Thank you. Great evening. I am Yash Desle from class 8. Thank you, Mrudul, for enlightening us about tonight's theme. Now it's my privilege to introduce our esteemed guest for the evening. Our chief guest for tonight is the Honorable Shri Santosh Ingre sir, the PSI stationed at Bosri. We extend a warm welcome to you, sir. We are also graced by the presence of our program president, the Honorable Shri Vilas Lande sir, first MLA of Bosri. He has served our community as a corporator and mayor and proven his ability to be a liberal leader of Bhosri. Sir is also founder of Rajmata Shikshan Prasarak Mandal Pune. We welcome you, sir. I also invite Ranjit Patil Kavekar, sir, Managing Director of Arise International School. I welcome Ms. Poonam Gadkar, ma'am, Principal of SVNS School at Ratni. I also welcome our Supriya Jadhav, ma'am, the Principal of Arise International School, Bhosri. Now I request our guests for lighting the lamp.
request our head boy Sumit Suryavanshi to felicitate our chief guest, Honorable Shri Santosh Ingre sir. सर्वांना नमस्कार आणि वंदन. अराईज इंटरनॅशनल स्कूल यांच्या वतीनं आज या ठिकाणी या शाळेतील 1100 विद्यार्थी यांच्यासाठी शिक्षण घेता घेता मनोरंजनही व्हावं अशा माध्यमातून या ठिकाणी मुलांमध्ये सांस्कृतिक ओढ आणि संगीताची तसेच मनोरंजनाची आवड निर्माण व्हावी म्हणून या ठिकाणी अराईज इंटरनॅशनल स्कूल यांच्या वतीनं स्नेहसंमेलनाचं आयोजन केलं. त्यानिमित्त आज या मंचावरती उपस्थित प्रथम MLA आमदार सन्माननीय लांडेसाहेब, तसेच या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असणारे आतिशजी बारणे साहेब, तसेच त्यांचे सहकारी मित्र आमचे नाना नानी पार्कचे गुंजकर साहेब आणि ह्युमन राईट्स दिल्ली येथून या कार्यक्रमासाठी त्यांचे अचानक उपस्थित लागलेले लोंढे साहेब, ॲडव्होकेट गायकवाड साहेब आणि या कार्यक्रमासाठी उपस्थित सर्व या पाल्यगणांचे पालक या सर्वांना माझं वंदन आहे. नेहमीप्रमाणे दरवर्षीप्रमाणे या ठिकाणी या शाळेमध्ये स्नेहसंमेलन आयोजित केलं जातं. मुलांमध्ये एक नवीन प्रेरणा, मुलांमध्ये एक नवीन छंद, शिक्षण घेता घेता त्यांना जोपासा यावा या उद्देशानं माननीय अराईज इंटरनॅशनल स्कूलचे संस्थापक माननीय शिवाजीराव कवेकर सर यांचं सर्वप्रथम मी अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो. कारण त्यांनी या शाळेच्या माध्यमातून आपल्या पाल्यांना एक चांगलं भविष्य घडवण्याचं जे कार्य करतायत त्याबद्दल सदर शिक्षण संस्था MIDC भोसरी पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सन्माननीय जामदार साहेब यांच्या वतीनं या ठिकाणी कार्यक्रमासाठी आज मला इथे पाठवलेलं आहे. आज या ठिकाणी आपण सर्वजण आपल्या पाल्यांचं जे गुणगौरव आहे, जे कला आहेत ते आपण पाहण्यासाठी आलेले आहेत. त्याकरता मी सर्वांना शुभेच्छा आणि आपल्या सर्वांचं अभिनंदन करतो. आपल्या पाल्यामध्ये खरंच नवीन गुण विकसित होत आहेत. काय मुलं शिक्षणाबरोबर भविष्यामध्ये स्वतःला घडवण्यासाठी काही नवीन उपक्रम करतायत. त्यामध्ये त्यांच्यामधून आपल्याला एक नवीन अधिकारी, कलाकार किंवा एका मोठ्या पदावर जाण्याकरता जे काही आवश्यक गुण मुलामध्ये विकसित व्हावेत याकरता शिक्षण संस्था जे प्रयत्न करते ते खरोखरच वाखाणण्याजोगं आहे. या ठिकाणी मी सर्व पालकांना एक विनंती करेन. मी बऱ्याच दिवसापासून पाहतो या शिक्षण संस्थेमध्ये जी मुलं शाळेला येतात, ही गोष्ट मी सांगायला नाही पाहिजे परंतु सांगतोय, महत्त्वाची आहे. प्रायव्हेट ज्या वाहनं आहेत, रिक्षा वगैरे, त्यामधून आपली मुलं पाठवू नका शाळेला. त्यांच्याकडून लायसन्स नसतात, त्यांच्याकडे त्या ड्रायव्हरकडे त्यांचे जे सुरक्षेचे जे काही नियम आहेत ते नियम ते पाळत नाहीत. आणि अशामध्ये आपली मुलं जर शाळेत आपण पाठवत असाल तर ते त्यांच्या जीवाकरता धोका आहे. तर मी सर्वांना विनंती करेन, खाजगी बसेसमधून किंवा खाजगी रिक्षामधून मुलांना कृपया पाठवू नका. आपल्या मुलांमध्ये भविष्याचा मंत्री असू शकतो, IAS अधिकारी असू शकतो, एखादा मोठा डॉक्टर होऊ शकतो. तर आपल्या मुलांना त्यांची काळजी घ्या. आणि या ठिकाणी आपण सर्वांनी उपस्थिती लावली आणि पोलीस खात्याच्या वतीनं मला या ठिकाणी बोलवून सन्मान दिला, त्याबद्दल मी या अराईज इंटरनॅशनल स्कूलचं सर्वांच्या वतीनं मी अभिनंदन व्यक्त करतो, आभार व्यक्त करतो आणि या माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. थँक्यू.
Thank you, sir, for enlightening us with your words. नमस्कार. उपस्थित सर्व पालक बंधू आणि भगिनी, महाराज इंटरनॅशनल स्कूलचं आज स्नेह संमेलन आणि या ठिकाणी मुलांचा डान्स आपल्याला पाहायचा आहे. आमचं तुम्हाला भाषण ऐकायचं नाही हे मलाही माहिती आहे, त्यामुळे मी तुमचा जास्त वेळ घेणार नाही. कारण पोलीस खात्याचे अधिकारी या ठिकाणी इंगळे साहेबांनी आपल्या भाषणातून सांगितलं की प्रायव्हेट गाड्या त्या ठिकाणी आणू नका आणि खाजगी बस. पण सर, ही जी बसलेली जनता आहे या ठिकाणी अनेक वर्षापासून या परिसरामध्ये राहते आणि लोकसंख्या गेल्या 4 ते 5 वर्षामध्ये झपाट्याने वाढलेली ही लोकसंख्या आहे. भोसरीमध्ये आमचे बसलेले सँडविच कॉलनीमध्ये त्या काळातले जुने जाणते आमचे आदरणीय कदम साहेब मला वाटतं, हां तो, आणि ते त्या काळामध्ये 1985ला सँडविच कॉलनी त्या काळामध्ये दिघी रोडला झाली, जिथं अजित गावणे राहतात त्या ठिकाणी. आणि भोसरी आणि भोसरीचा परिसर पाहिल्यानंतर त्या काळातली भोसरी आणि आजची परिस्थिती खूप बदललेली. इंद्रायणनगर एक चांगलं सेक्टर आणि त्या सेक्टरमध्ये ही शाळा या ठिकाणी सुरू होत असताना माजी आमदार शिवाजीराव पाटील कवेकर त्यांनी हा प्लॉट त्या ठिकाणी घेतला. तिथे संग्राम लांडगे बसलेले आहेत, गुंजकर आहेत, आतिश बारणे आहेत, सन्माननीय लोंढे साहेब आहेत. अशा अनेक मान्यवर या ठिकाणी असताना सुद्धा लोकसंख्या वाढल्यानंतर त्या ठिकाणी ही विद्येचं माहेरघर म्हणजे आपण पुणे समजलं जातो. मराठवाडा असेल, खानदेश असेल, कोकण असेल, पश्चिम महाराष्ट्र असेल, अशा भागातून या परिसरामध्ये नोकरीच्या निमित्तानं व्यवसायाच्या माध्यमातून या ठिकाणी आलेले आपण सगळे आहात. आणि शिक्षणाचा दर्जा चांगला असला पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून या प्राचार्य सोफियाताई जाधव या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे काम करतात. याच्या पलीकडं माझी एकटी त्या ठिकाणी इंटेलिजंट क्रेडिट स्कूल आहे, पलीकडं साधू वासवानी आहे, याच्या पलीकडं प्रियदर्शिनी आहे. मुशीला गेल्यानंतर त्या याच्यामध्ये सिटी प्राईड आहे, SNBP आहे, प्रियदर्शिनी अजून एक त्या ठिकाणी आहे, तिथं आमची एक राजमाता ज्ञानभक्ती त्या ठिकाणी आहे. शिक्षण संस्था किती आहे, लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची त्याची गरजसुद्धा या ठिकाणी आहे. पण शैक्षणिक दर्जा त्या ठिकाणी चांगला असला पाहिजे. आता इंग्रज सरांनी सांगितले की यातला IAS IPS किंवा मंत्री झाला पाहिजे. सर, मंत्री किंवा पुढारी करू नका, त्याला कलेक्टर करा, त्याला IAS करा, IPS करा. कारण आयुष्यामध्ये आम्ही सर्व पाहिलेले आहे त्यामध्ये. कारण संस्थेमध्ये काम करत असताना माझ्याकडं साधारणतः 12,000 विद्यार्थी शिक्षण घेतात. पण शिक्षण त्या ठिकाणी मी त्या दोरीमध्ये त्या ठिकाणी प्राचार्याला प्राध्यापकाला उभं करत असतो. कारण माझा पालक त्या ठिकाणी येतो, तो त्या पालकाला त्या ठिकाणी वाटतं की माझा मुलगा मुलगी त्या ठिकाणी चांगली शिकून मोठी झाली पाहिजे, तिला जगाच्या बाजारपेठेमध्ये चांगल्या प्रकारे ज्ञान मिळालं पाहिजे. आध्यात्मिक असेल, सांप्रदायिक असेल, शैक्षणिकमध्ये त्या ठिकाणी आहे. अशा अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी कला गुणांना वाव देण्याचं काम या ठिकाणी करणं गरजेचं असतं. पण ही अपेक्षा पालकांची असते. आज एवढ्या मोठ्या संख्येने आपण उपस्थित राहिलेले आहात की खरं पाहिलं तर या परिसरामध्ये इंडस्ट्री इंग्लिश शेजारी या ठिकाणी RIG इंग्लिश मिडियम स्कूल आहे. आता आपली गरज काय, आपल्या काय अडचणी त्या ठिकाणी काही मी संस्थेमध्ये सुद्धा एक काही पायबंद घालून दिलेला आहे की काही तुम्हाला आता तुमची भांडणं होत असतील प्राचार्य किंवा प्राध्यापकाबरोबर त्या ठिकाणी होत असेल 100%. आता यात कोणी सांगणार नाही उठून, तर मला ते माहिती असते. मलाही फोन येत असतात की प्राध्यापक त्या ठिकाणी व्यवस्थित लक्ष देत नाही, मुलांच्या बाबतीमध्ये त्या ठिकाणी व्यवस्थितपणे त्या मुलांना 1-1, 2-2 तास त्या ठिकाणी बसमध्ये बसावं लागतं. तो बस चालक सुद्धा त्या ठिकाणी किती वेळात येतो, काय येतो, कसा सोडतो हे माहीत नसतं. याची सुद्धा काळजी त्या ठिकाणी संस्था चालकाचे प्राचार्य किंवा संस्था चालकाने घेणं गरजेचं असतं.
पण तुम्हाला काय सांगतो की याच्यामध्ये सुद्धा ह्या सर्व गोष्टी आहेत की मुलाची काळजी घेणं गरजेचं आहे. काही ठिकाणी अपघात होतात, काही ठिकाणी अपहरण होतं, त्या ठिकाणी काही मुलाला त्रास होतो. याची सुद्धा काळजी जोपर्यंत मुलगा घरी जात नाही तोपर्यंत त्याच्या आईवडिलाला असते. आणि शाळेमध्ये आल्यानंतर त्या पालकाला वाटलं पाहिजे की हे घर त्या ठिकाणी माझे सुरक्षितही संस्था चांगल्या प्रकारे असं त्या ठिकाणी वास्तव निर्माण करण्याचं काम या संस्था चालकाचं असतं आणि ते करणं गरजेचं आहे. म्हणून याच्यामध्ये सुद्धा इंगळे साहेब आपण सांगितलं की समोर जर समजा उभं राहण्याच्या MIDCच्या गाड्या खूप जातात, तर त्या काळामध्ये तेवढ्या याच्यामध्ये तुमच्या डिपार्टमेंटनी किंवा RTOवाल्यांनी जो टायमिंग शाळेचा आहे त्यावेळी त्या याच्यामध्ये तिथं बंद करणं गरजेचं आहे. फक्त मुलांची शाळेतले जे विद्यार्थी पालक सोडायला येतात सकाळी, ज्यावेळेस सकाळी 7:30ला मी पाहतो मोटरसायकलची काही लेडीज येतात, काही पुरुष येतात, पण ज्यावेळेस आल्यानंतर मी पाहतो की ती गर्दी खूप असते. मग इंडस्ट्रीवाले काय कुणाचं ऐकत नाही, त्यांना काय त्या कंपनीमध्ये जायचं असतं. पण ज्यावेळेस छोटासा पालक मी पालक त्या ठिकाणी छोट्याशा मुलाला घेऊन येतो, त्यावेळेस काही इन्सिडेंट घडू नये त्या बाबतीमध्ये स्वतः तेवढी काळजी आपण घेणं गरजेचं आहे. कारण आपल्या तेवढ्या वेळात म्हणजे जर समजा सांगितलं, प्राचार्य मॅडम सुप्रिया जाधव यांना जर सांगितलं की टायमिंग किती आहे, शाळा भरती किती वाजता, की अर्ध्या तासामध्ये शाळा भरत असते आणि सुट्टी किती वाजता, त्या काळामध्ये आपण त्या दोन्ही साईडला ते गेट किंवा आपल्या पोलीस खात्याचे डिपार्टमेंट उभं करणं गरजेचं आहे. म्हणजे कोणत्याही बाकीचे प्रायव्हेट कार किंवा इंडस्ट्रीमध्ये कोणी येणार नाही याची काळजी घ्या. पुन्हा एकदा या ठिकाणी खूप काही बोलण्यासारखं, पण आपण सर्वजण या ठिकाणी आलात त्याबद्दल मला शिवाजीराव पाटील कवीकरांनी फोन केला, सांगितलं की त्या कार्यक्रमात तुम्ही जा. मला काही कार्यक्रमाला सांगितलं नव्हतं, पण मला येणं गरजेचं आहे. शेवटी ज्यावेळेस सुरू होताना ही संस्था निर्माण करताना या परिसरामध्ये जी काही जागा त्या ठिकाणी प्राधिकरणाने घेतली, काम सुरू करताना स्वतः अडचणी आल्या, त्या अडचणी त्या ठिकाणी दुरुस्त करण्याचं काम मी आणि शिवाजीराव पाटील कवीरकर यांनी केलं. म्हणून ही संस्था या ठिकाणी संग्राम लांडगे यांनी या ठिकाणी मदत केली. अशा याच्यातून ही संस्था या ठिकाणी आहे. म्हणून मी पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. आपल्या सर्वांच्या वतीने विद्यार्थ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir, for sharing your thoughts. Now I invite us Supriya Jadhav ma'am. Great evening to all, and really it's a pleasure to see all of you over here with a full strength. It really gives us an encouragement to understand that you all care for your children. मैं हिंदी में बोलना चाहूँगी और एक छोटा सा निवेदन भी है. बहुतों ने मुझे बोलते हुए सुना भी है, बहुतों को बातें अच्छी भी लगती है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है. आज जो हमने ये थीम ली है, इको फ्रेंडली थीम, और कल के दिन की भी जो थीम है जो हमने बड़े बच्चों के लिए ली है, वो है इंडियन वैल्यूज़ एंड कल्चर. एक रिक्वेस्ट हम सभी पेरेंट्स से, उनके फैमिली मेम्बर्स से, सोसाइटी से, टीचर्स से, हम खुद स्कूल में जितनी कम्युनिटी है, हमारे नेबर्स हैं, उनसे एक निवेदन करते हैं कि हम चाहते हैं, वी वेलकम रंजीत सर टू बी हियर. एक निवेदन करते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों के साथ संवाद इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बातें हम बच्चों से करेंगे उतनी ज़्यादा बातें हमारे बच्चों के मन में जो चल रही हैं वो हमें बहुत ज़्यादा पता चलेंगी. उन्हें ऐसी ऐसी बातों का सवाल होता है या मुश्किलें होती हैं, कभी वो झिझकते हैं किसी को पूछने के लिए. उनका सबसे करीबी दोस्त सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स को होना चाहिए. हम नर्सरी से लेके अगर ग्रेड 2 या ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स अगर स्ट्रेंथ देखें और पेरेंट्स का सोच अगर हम थोड़ा सा इवैल्यूएट करें, तो नर्सरी में हमें बड़ी खुशी मिलती है. बच्चा पहले दिन स्कूल गया, दूसरे दिन स्कूल गया, फ़ोटो क्लिक करते हैं, एंट्रेंस पे खड़े हो जाते हैं. फिर उनकी एनुअल गैदरिंग आई, उनकी कॉस्ट्यूम के साथ फ़ोटोज़ पिक्चर्स क्लिक करते हैं. जैसे जैसे धीरे 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 बड़ा बच्चा होते जाता है, हमारा उसके साथ इंटरेक्शन और उसकी दुनिया में हमारी एंट्री कम हो जाती है. सो रिक्वेस्ट है, आज जो भी हमने कोशिश की है, आज या आने वाले कई दिनों में या इन दिनों में आपने जो बदलाव बच्चों में देखे हैं और आप हर जगह देख रहे हैं, सभी चीज़ें हमने स्टूडेंट सेंट्रिक की हैं. देयर इज़ नथिंग विच अ प्रिंसिपल और अ टीचर हैज़ टू इंटरवीन. हम बस एक फेलिसिटेटर है. सही और गलत की चीज़ें हम उनको सिखाना चाहते हैं, ताकि जो आने वाला समय है जहाँ हम बूढ़े होते जाएंगे और वो जवान होंगे, इस
राष्ट्र को, इस समाज को अपने आगे के जर्नी में कैरी ऑन करेंगे तो हमसे जो सीखा है वही आगे वो रिप्रोड्यूस कर पाए. सो रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज़ इंटरैक्ट मोर विथ योर चिल्ड्रन. स्कूल में जैसे आप गैदरिंग में आज हो, कॉफ़ी चैट को आइए. साल का एक दिन होता है जहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं, या 2 दिन होते हैं, PTMs होते हैं जो मंथली हमने किए. प्लीज़ आइए, बच्चों के बारे में जानिए, चीज़ों के बारे में इंटरेस्टिंग समझने से ज़्यादा उसको महसूस करें. आपको बच्चों में बदलाव बहुत ज़्यादा लगेंगे. आई थैंक ऑल माई चिल्ड्रन जो यहाँ पे आप बैक स्टेज में, फ्रंट स्टेज में, सीन एंट्री, सब जगह पे सारी चीज़ें बच्चों ने जैसे हमने कही है वैसे करने की कोशिश की है. अगर गलती से कोई आपको समझ ना पाए तो उन्हें अपना बच्चा समझ के माफ़ करे. एंड मोस्ट वेलकम वंस अगेन फॉर दिस इवेंट. विदाउट टेकिंग मच टाइम वी विल स्टार्टिंग दिस इवेंट. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे. Thank you, ma'am, for addressing us. Now, I invite Ranjit Patil Kavekar, sir, Managing Director of Arise International School. I also welcome Yash Modle for felicitating, sir. Now, let us start this program by hearing words from the scripture. I call on stage our very own Mokshada ma'am and Nyanada, who have won the Gita Vrati Award for memorizing the Bhagavad Gita. अथ ध्यानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितचेतना मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्तान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रियतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। ज्ञानदा, आप क्या पढ़ रहे हो ये? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और स्कूल की पढ़ाई छोड़कर आप क्या पढ़ रहे हो ये? रुको सब्र करो, मैं सब कुछ बताती हूँ। चलो तो दोस्तों, आज मैं आपको भी बताती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और क्यों पढ़ रही हूँ। ये भगवद गीता है और भगवद गीता पर
भगवत गीता के ज्ञान पर बहुत लोगों ने काम किया है, रिसर्च किए हैं। जब संत ज्ञानेश्वर महाराज को भगवत गीता समझ में आई तो उन्होंने भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी लिखी। जब बाल गंगाधर तिलक जी को भगवत गीता समझ में आई तो उन्होंने भगवत गीता पर गीता रहस्य लिखा। और आपने कभी भगवत गीता सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो आज मैं ज्ञानदा कदम आपको भगवत गीता की एक नई व्याख्या बताती हूँ। क्या है ये भगवत गीता? भगवत गीता एक उत्तर है, भगवत गीता एक योग है, भगवत गीता एक साधना है। तो भगवत गीता एक उत्तर कैसे है? जो अर्जुन के कष्ट, दुख, चिंता, प्रश्न, विषाद, समस्याएं, वैसे देखा जाए तो वो हमारे ही प्रश्न है, वो हमारे ही चिंताएं हैं। और भगवत गीता में क्या है? भगवत गीता में कर्म ही सब कुछ है, बाकी सब तो निमित्त मात्र है। ऐसा जगत का, दुनिया का कोई भी प्रश्न नहीं जिसका उत्तर भगवत गीता में नहीं है। भगवत गीता में सारे जीवन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर है। भगवत गीता 108 उपनिषदों में से जो 10 मेन उपनिषद हैं उनमें से एक भगवत गीता है। भगवत गीता में कुल मिलाकर 18 अध्याय एवं 700 श्लोक है। श्री कृष्ण बस अर्जुन के ही सारथी नहीं, वे हमारे भी सारथी है। ओ, ऐसा है क्या? तो आप मुझे आनंद से कैसे रहना है, हम आनंद अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, या स्ट्रेस फ्री हम कैसे रह सकते हैं, ऐसा कुछ बता सकते हो क्या? हाँ, मैंने अभी तो आपको बताया कि भगवत गीता में सारे प्रश्नों का उत्तर है एवं इसमें आपके प्रश्न का भी उत्तर है। कैसे? इसके लिए बहुत ही सुंदर श्लोक है, मैं वो आपको श्लोक सुनाती हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। ये तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, आपने गाना गाया ऐसे ही लगा मुझे। रुकिए, मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ ऐसा होता है कि आप कर्म करते रहिए, कर्म मत छोड़िए, पर आपको कर्म फल की अपेक्षा नहीं करनी है। आपको बिना कर्म फल की अपेक्षा रखकर कर्म करना चाहिए। जब आप कर्म फल की अपेक्षा रखते हो और आपको अपेक्षित फल नहीं मिलता तो आप बहुत दुखी होते हो। इसीलिए आप बहुत दुखी होते हो तो आप इसीलिए निरंतर कर्म करिए, आनंद से कर्म करिए। इससे एक उक्ति भी है, जैसे ज्याचे कर्म तैसे फल देतो ईश्वर। इसका अर्थ ऐसा होता है कि जिसका कर्म जैसा हो उसे वैसा ही कर्म फल मिलेगा। हाँ, इसीलिए हमें निरंतर कर्म करते रहना है, आनंद से कर्म करते रहना है और हमें अच्छा ही कर्म करते रहना है। उत्तमम, बहुत उत्तमम। हाँ, बहुत ही सुंदर आपने बताया। मेरे पास और भी कुछ श्लोक है, वो मुझे आते हैं बट उसका अर्थ मुझे पता नहीं है। क्या आप बताओगे उसका अर्थ? हाँ हाँ, मैं जरूर आपको उसका अर्थ बताऊंगी। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अरे, ये तो अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन पूछते हैं कि हम स्थितप्रज्ञ किसे कह सकते हैं और हम स्थितप्रज्ञ खुद को कैसे बना सकते हैं। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः
सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र नाभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनिन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गाणीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तब ये अर्जुन के प्रश्न का उत्तर है। तो श्री कृष्ण उत्तर बताते हैं कि हम उसी मनुष्य को स्थितप्रज्ञ कह सकते हैं जो अपने आप में संतुष्ट रहे, सुख दुख राग भय क्रोध शुभ अशुभ में समान भाव रखे और अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखे। और हम खुद को तभी स्थितप्रज्ञ बना सकते हैं जब हम अपने आप में संतुष्ट रहे, सुख दुख भय क्रोध शुभ अशुभ में समान भाव रखे और अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखे। जैसे कि जब कछुए को संकट की अनुभूति होती है तब वो अपने अवयवों को अपने कवच में समेट लेता है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने अवयवों को अपने नियंत्रण में रखना है। एक उदाहरण आप दे सकते हो उसके लिए? हाँ, जब हमारी माँ हमें कहती है कि टीवी मोबाइल बंद करो और पढ़ाई करो, तब हम टीवी मोबाइल बंद करते पढ़ाई भी करते, पर हमारा लक्ष्य टीवी मोबाइल में ही रहता है। तो हमें पूरा फोकस देके पूरा कंसंट्रेशन देके पढ़ाई पर ध्यान देना है। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर आपने ज्ञान मुझे बताया है। आप ये कहाँ सीखते हो? कैसे पता चला आपको ये? हमारे विद्यालय में इतिहास नाम का विषय है, उसमें हमें ये पढ़ाया जाता है। हाँ, बहुत ही जीवन की लाइफ सच में कैसी जीनी चाहिए, हमें आगे जाकर कभी डिप्रेशन में नहीं रहना है, हमारे काम कैसे होना चाहिए, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा सिखाया जाता है। क्या हम इस जगत के लिए, इस संसार के लिए कुछ कामना कर सकते हैं? हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद। तुम लोग फोन से बाहर तो निकले और तू सेल्फी से। Hey Abhi, you got a really nice setup around here, bro. Looks like it must have taken time, ना? हाँ अभिजीत, सेटअप तो अच्छा किया है तूने। और भाई डीजे भी है। अरे थैंक्स मेंशन दैट। Hey Obi, what's up? It's fantastic. I'm so happy today. Sounds good, पर क्यों? हमारे घर कल सेलिब्रेशन है। मेरे पापा का बिजनेस ग्रो हो रहा है। बिजनेस? कौन सा बिजनेस? मेरे पापा एक फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्ट्री? पर कहाँ? हमारे शहर में तो हमें खेलने तक की जगह नहीं है, फैक्ट्री कहाँ बनेगी? फैक्ट्री तो हमारे गांव में बनेगी। गांव में? That's great, congratulations. वेट, क्या फैक्ट्री वही बन रही है जहाँ हम बचपन में खेलते थे, पेड़ के फल खाते थे और वही पेड़ के नीचे पढ़ाई करते थे? एक चिड़िया भी थी ना उधर, जिसके लिए तुम हर रोज खाना और पानी रखती थी, नाम क्या रखा उसका? हाँ, कुकू। तो फिर उन सब का क्या? Who cares? फैक्ट्री तो बन रही है ना। हाँ, अब तो पैसा ही पैसा होगा। Congrats, Obi. Thank you अभिजीत। Congrats Obi। Thank you सनय। Congrats, Obi.
Let's dance then. Stop it! What happened, Gati? Are you not happy for her? Of course I am, Abhi. Congratulations, Ovi. But don't you remember those good old days? There we used to have fruit from the trees. We used to study and play underneath them. There was even a bird there that you named. What will happen to all of those? अरे छोड़ो ना यार, किसको फर्क पड़ता है? फैक्ट्री तो बन रही है ना. Guys, क्या तुम्हें ये सब गलत नहीं लगता है? पानी उड़ा रहे, प्लास्टिक कप फेंक रहे, इतना नॉइज पोल्यूशन कर रहे और अब पेड़ भी काट रहे. पर इसमें गलत क्या है? इसमें गलत है. Wait, let me show you something. Something that I have learned from my school and something that is close to my heart as an Araisian. Arise International School, eco-friendly elegance. Behold, this book has taught me everything that is needed to know about saving our planet, why we should save it, and really how important it is to do so. And now, it is about time that I pass this information on to you guys. Now, please join us on this journey because it will be a fun one. After all, we need company, right? Now, let's see what we can do to save the planet for me and you. Let's see what we can do, save the planet for me and you. Let's see what we can do, save the planet for me and you. E-A-R-T-H, planet.
Now, chapter 1, biodiversity. Let's see what the earth has to say about this matter. What is a biodiversity? Let's see. We can value biodiversity because it shapes our relationships and social norms with one another. These relational values are part of people's individual or collective well-being, responsibility, and a sense of connection with the environment. Now we get the importance and the meaning of biodiversity. हम इंसानों के साथ प्राणी, पक्षी, पेड़ पौधों की भी लाइफ इम्पोर्टेंट है. Correct. Now, chapter 2. Chapter 2. Which chapter? We must save water.
water, but why we should save it? जल जीवन के लिए सोने के समान है। बचाओ बचाओ जल बचाओ, जल को दुर्लभ ना बनाओ। जल स्वच्छ है तो हम स्वच्छ है। पानी बचाया जा सकता है लेकिन बनाया नहीं जा सकता। दादाजी ने नदी में पानी देखा, पिता ने कुएं में, हमने नल में देखा और बच्चों ने बोतल में। उनके बच्चे कहाँ देखेंगे? जरूर विचार करें और पानी को व्यर्थ ना करें। सोचो तो क्यों है आज सहम सहम पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम? नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम? स्वच्छता और पानी हमको बचानी है जिंदगानी। सोचो तो क्यों है आज सहम सहम पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती कब कहाँ थे तुम? नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम? स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। चमक चमक देखो बिजुली का चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। काले मेघा पानी को बरसाओ, पानी को बरसाओ। खिचड़ी की तलवार नहीं बूंदों के पान चलाओ, बूंदों के पान चलाओ। घर घर में घिर घिर आए बदरा, घर घर घोर गाए छाए बदरा। चमक चमक बुझे बदरा के ढंग की, चमक चमक देखो
matter how rich you are, you can't live without water. Now, let us go ahead on the next chapter. क्या तुम्हें पता है हमारे देश के किसान कितनी मेहनत से खेती करते और हमें अनाज देते, और आजकल के खराब मौसम की वजह से उन लोगों की मुश्किलें बढ़ रहे हैं. We must all support them and motivate them to fight with the challenges. Let's see how a farmer lives and survives. Farmers work hard every day to grow food to everyone. They have many challenges like lack of water, unpredictable weather, and low crop prices. Even with this problem, they not stop working. Their dedication ensures that we always have food to eat. We should respect and thank our farmers for their hard work. मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे. मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे. तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. मन शुद्ध तुझं गोष्ट हाय पृथ्वी मुलाची, हा पृथ्वी मुलाची, हाय पृथ्वी मुलाची. मन शुद्ध तुझं गोष्ट हाय पृथ्वी मुलाची. तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची, परवा बिकुलाची, परवा बिकुलाची. झेंडा भल्या कामाचा जो घेऊन निघाला, झेंडा भल्या कामाचा जो घेऊन निघाला, अरे काट कुठं वाट म्हणजे पोचती गेला. रगत निघल गरीबी हसन शाबास देती, रगत निघल गरीबी हसन शाबास देती. चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची, परवा बिकुनाची. मन शुद्ध तुझं गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची, पृथ्वी मोलाची, हा पृथ्वी मोलाची. मन शुद्ध तुझं गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची. तू चाल पुढं तुला रगड्या कशाची, परवा बिकुनाची. The best way to respect a farmer is to respect his produce by not wasting it.
your wasting is produced back, then you are disrespecting a farmer. Now tell me one thing. We keep our house neat and clean, right? तो क्या ये सोसाइटी हमारा घर नहीं है? Let's see what the earth has to say further on this. मुझे प्लास्टिक मुक्त करो वरना एक दिन मैं रूठ जाऊंगी। इंसानों से इस कदर मैं खुद को ही बंजर बना दूंगी। बात मान लो मेरी, तुमने जो आदत डाली है प्लास्टिक की, सुधार लो। इतने लालची मत बनो, इतने स्वार्थी मत बनो, थोड़ा मेरा भी सोचो। मैं उब रही हूँ, मैं झड़ रही हूँ। आपकी अपनी धरती से शोषित जल के बदले उसे थमा देते हैं हम प्लास्टिक की खाली बोतलें। तो आज से सब लोग ये बात जान लो, आज से नो प्लास्टिक, नो प्लास्टिक, नो प्लास्टिक। कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे, टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। अगर सुन लो जज्ब लेना हम तो बम ये फट जाएगा, ये बहती सी है नदियाँ का ये पानी रुक जाएगा। अगर सुन लो जज्ब लेना हम तो बम ये फट जाएगा, ये बहती सी है नदियाँ का ये पानी रुक जाएगा। कि दर्द है धरती का ये दम भी घुट जाएगा, ये कुदरत की हदस नस में जहर ये बस जाएगा। प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं, कैसा ये समाज है। कल ना हो हाथों में आज है, मौका ये अपना बनाए रे। टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे, टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। Situation drastic है, जहाँ भी कोई drastic है, situation drastic है, जहाँ भी कोई पहली ओट स्ट्रॉक इत्यादि सर्रे सर्रे में फैला दे, ना घट पाए ना मिट पाए, रह के टॉक्सिक बन जाए। इससे छुटकारा तो नहीं पर है एक सरल उपाय रे, सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कह दे बाय बाय रे। टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। हम जो मिलकर ध्यान ले अगर वक्त ये बदल जाएगा, इस धरती के नामे से बोझा हट जाएगा। Refuse to use, reuse, recycle, ये बात है। प्लास्टिक वाले सामान सारे पूछ के आओ खुल के मुस्कुराए रे। टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे, टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे, टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे, टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे।
समझ गई। हमें प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए। मैंने भी कल स्कूल से आते आते मेरा प्लास्टिक का टिफिन फेंक दिया। सच बताओ, इसमें कौन सी सब्जी थी? करेले की। हाँ, करेले की सब्जी। फिर तो मैं भी फेंक देती। क्या टिफिन फेंक दिया? मम्मी ने डांटा नहीं? डांटा? घर पे ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुआ था, फिर मैं और पापा 4 घंटे तक घर से बाहर। हाँ, मेरी मम्मी भी मुझे ऐसे ही करती है। जब भी वो मुझे डांटती है, उनका आवाज A विंग से D विंग तक जाता है, फुल नॉइज पोल्यूशन के साथ। ग्लोबल वार्मिंग से याद आया, आजकल हमारा मौसम कितना बदल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना बढ़ चुका है, क्योंकि हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं। इसीलिए पेड़ों को मत काटो, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ जाएगा। अभी ग्लोबल वार्मिंग है ही, इसीलिए हमें कभी भी धूप लगती है, कभी भी ठंडी लगती है और कभी भी बारिश हो रही है। करेक्ट। दिवाली में मैं जब भी फटाके जला के भाग जाता था, बारिश होकर बुझा जाती थी। मैं वो फिर जलाता, वो फिर बुझा जाती थी। अरे ये क्या मजाक है? ब्रो चिल चिल। वो भी तो सही है। क्या चिल? आजकल इतनी गर्मी हो रही है। हे भगवान, थोड़ी हवा आने दे। अरे थोड़ी नहीं, ताजी हवा आने दे। Guys, calm down. Let us understand the cause of this in more detail. Air pollution is the emission of gases, particles, biological molecules, etc. into the air which is harmful to human health and the environment. Clean air, water and the environment are necessary for all of us. We must have a pure environment. Otherwise, how will we live? How will we survive? Air pollution is a serious problem. It reduces air quality. It contaminates our environment. It causes many diseases. In today's modern era, as common people continue to become more advanced, the environment on this earth is becoming increasingly polluted with the air pollution being a major cause. Due to air pollution, it has become difficult to breathe in many cities. If air pollution continues to increase in this way, it will become difficult for all living beings to survive in the future. काला काला आसमां है, बादल भी मैला है, घुटता है दम यहाँ जो धुआं धुआं फैला है। काला काला आसमां है, बादल भी मैला है, घुटता है दम यहाँ जो धुआं धुआं फैला है। फैक्ट्री हो, केमिकल हो, चूल्हा हो या कार हो, पोल्यूशन की मार से बच्चे क्यों बीमार हो। चलाता है बहुत का काला बादल आसमां में छाता है, धुआं फैला के तू खुशियां मनाता है, फसलें कटी है तुम्हें आग क्यों लगाता है। चल हवा आने दे, जरा हवा आने दे। पैदा होती हरे हरे ट्री में, कुदरत देती हवा हवा फ्री में, हमको उसका मोल नहीं है जो भी हमें मिले इसी में। मत घूम तू ऐसे हरी में, हवाओं को दे जगह भरी में, ऐसा ना हो जिंदगी खो जाए अपनी बेकार के इस हड़बड़ी में। चल हवा आने दे, जरा हवा आने दे।
चल हवा आने दे। जो तुम बोल रही थी ना, आजकल का मौसम कितना बदल रहा है, गर्मी भी बढ़ रही है, पता है क्यों? क्यों? पेड़ काटने की वजह से। Do you know how much pain they feel? We should all come together to save the trees. But why we should save them? याद है तुम्हें वो बैनियन ट्री जहाँ पे हम खेलते थे? A single tree provides thousands of bread. Trees are the foundation of our life. Plant trees, reap fruits, gain shade, and enjoy their prosperous life. Plant tree and give birds a home. Humans destroyed their happiness when they cut down trees with an axe. If humans forgot their blessings of trees, they will deeply regret it in the future. If humans plant as many trees on their birthday, this earth will flourish once again. मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू सुनता है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। हाँ, बड़ा दुखता है, दुखता है। ना काटो मुझे दुखता है। मैंने दिया तुमको पल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी, तेरा इसमें क्या लगता है। ना काटो मुझे दुखता है,
Hey guys, I have a good news. I convinced my dad to not cut the trees. Oh, really? That's great. Let's celebrate this. इस न्यूज़ पे डांस हो जाए. Come on guys, let's go ahead on the next chapter. But first tell me, हमने अभी तक क्या क्या सीखा है? एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए बिकॉज टुडे एवरीवेयर इज एयर पोल्यूशन बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इंडस्ट्रीज इमर्जेंस एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्ट दिस ऑल लीड्स टू डिजीजेस लाइक कैंसर एंड हार्ट प्रॉब्लम्स सो वी शुड नॉट डू दिस पानी बचाना चाहिए because the earth only has 2% of fresh water. Another 98% is salty and polluted. And also the 2% of water is getting polluted. So save water. हमें पेड़ों को भी बचाना चाहिए because trees give us oxygen, shade, fruits, etc. So aren't we doing wrong by cutting them? और करेक्ट. अब इन सब के साथ हमें मिट्टी को बचाना चाहिए. मिट्टी को क्यों? In today's era, many farmers are using chemical fertilizers. वो सारी chemical fertilizers की वजह से वो मिट्टी खराब हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग तो है ही. तो चलो अरे कहाँ? गवर्नमेंट को मिट्टी की चिट्ठी लिखने. आओ
मिलकर हम सब मिट्टी को बचाएं, क्योंकि हम सब मिट्टी से ही बने हैं। अंत में मिट्टी में ही मिलना है। हम जो भोजन करते हैं वो सब मिट्टी से ही बनता है। हम मिट्टी के बिना जीवित नहीं रह सकते। चल यार, क्या लिख रहा है? मिट्टी की चिट्ठी। तू भी लिख। रूखी है, सूखी है, हद से ज्यादा रूखी है, कुछ भी ना कहती, सब कुछ ये सहती है। पूछा क्या तूने कभी मिट्टी का हाल, जिससे बना तो किया उसका ख्याल। अरे लिख दे तू, मिट्टी की चिट्ठी, मिट्टी की चिट्ठी, मिट्टी की चिट्ठी, मिट्टी की चिट्ठी। बेटी जो माँ बन के, उसकी तू जा बन के, उसकी जुबां बन के लिख दे जहाँ तो ये मिट्टी की चिट्ठी, मिट्टी की चिट्ठी, मिट्टी की चिट्ठी, मिट्टी की चिट्ठी। Write to your leaders. जागो जागो जागो, हमें मिल करके एक कदम उठाना है। जागो, हमें मिल करके एक कदम उठाना है। प्रकृति है विनाश को हमें इसे बचाना है। जागो जागो, अपने दिल पर रख हाथ को, ना अब ये बात मुकरनी है। अपने दिल पर रख हाथ को, ना अब ये बात मुकरनी है। प्रकृति जितनी बर्बाद हुई, सुन इंसान तेरी ये करनी है, सुन इंसान तेरी ये करनी है, सुन इंसान तेरी ये करनी है। अपनी खुद नजरों से हमें उठ के दिखाना है। अपनी खुद नजरों से हमें उठ के दिखाना है। प्रकृति है विनाश को हमें इसे बचाना है। जागो जागो जागो, हमें मिल करके एक कदम उठाना है। जागो, हमें मिल करके एक कदम उठाना है। प्रकृति है विनाश को हमें इसे बचाना है। जागो जागो जागो। खराब मौसम के कारण होने वाली एक भयावह घटना है। प्राकृतिक आपदाओं में मनुष्य के कार्य के कारण होने वाली घटनाएं शामिल नहीं है, लेकिन इनमें निम्नलिखित शामिल है: सुनामी, भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, बर्फीला तूफान, ओलावृष्टि, जंगल की आग और बवंडर। कुदरत के बेबसी में फंस गया इंसान, कहीं बाढ़ में कहीं सूखे में मर गया इंसान। बाढ़ की मुसीबत में जो फंसा है उसका साथ बन, निकाल उसे मुसीबत से तू खुदा का हाथ बन।
What about sunrise? What about rain? What about knowing that you said we were to gain? What about killing feelings? Is there a time? What about knowing that you said it's yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying bird as we make strong? है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। गते जो तुम कह रहे थे ना, आई रिस्पेक्ट दैट, वी ऑल अंडरस्टूड दैट, बट ये देखो कहाँ पे सुनामी आ रही है, कहाँ पे भूकंप आ रही है, कहाँ पे ज्वालामुखी आ फट रहा है। इन सब का क्या, नेचर की वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है, और तुम कह रहे हो हम नेचर को नुकसान दे रहे हैं। Relax, Khushi. Calm down. Take a deep breath. We all are responsible for this. बट हाउ? हमारी वजह से होने वाला वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, यूजिंग ऑफ प्लास्टिक एक्सेट्रा की वजह से नेचर को कितना तकलीफ हो रहा है। तो क्या नेचर को गुस्सा नहीं आएगा? Every action has a reaction. Thank you गते, तुमने हमें रियलाइज करवाया। अब हम ये सबको बताते हैं पर एक अलग अंदाज में। पॉल्यूशन के सॉल्यूशन देना कोई रैप हो, हर किसी की जुबां पे गूंजता ये रैप हो। छोटे छोटे काम है हर कोई करेगा, तभी तो हमारा इंडिया स्मार्ट बनेगा। सिर्फ एक चेंज जब कोई करेगा, देखना तुम सब इंडिया
तुम तंदुरुस्त हो जाओगे। कचरे को अलग अलग डिब्बों में डालो तुम, कचरा जलाने का धुआं करो तुम गुम। हाईटेक जमाना है, लोगों को समझाना है, वीडियो बनाना है, इंस्टा पे दिखाना है। सोच लो फेसबुक यूट्यूब पर वायरल बनाना है, व्हाट्सएप से दुनिया को जगाना है। घर का हो धुआं या धुआं हो बाहर का, लंग्स को बचाओ जहर है आपका। कम करो बंद करो गाना सुनाना है, चेंज करेगा हर किसी को गाना है। हमारी ये जिंदगी हम मिलेंगे चार्ज अप, जल्दी जल्दी एक्शन से करेंगे रिचार्ज अप। क्राइम को रोक दो, एक्सक्यूजेस को छोड़ दो, नया हमें बनाना है। चेंज है थोड़ा सा, थोड़ा ही तो लाना है। इंडिया को अब हमें स्मार्ट बनाना है, हमें स्मार्ट बनाना है। इंडिया को स्मार्ट बनाना है, इंडिया को। पॉल्यूशन के सॉल्यूशन देना कोई गैप हो, हर किसी की जुबान पे यूथ का ये रैप हो। पॉल्यूशन के सॉल्यूशन देना कोई गैप हो, हर किसी की जुबान पे यूथ का ये रैप हो। तो मिल गया सोल्यूशन? हाँ। तो इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि नेचर हमारा दोस्त है। बारिश के मौसम में बारिश पानी के साथ खुशियां भी बरसाता है। तो क्या तुमने ये नोटिस किया? हाँ। मई जून की चिलचिलाती गर्मी के बाद जब बारिश का मौसम आता है तो किसान से लेकर बच्चों और बुजुर्ग युवा तक सभी के चेहरे को मुस्कुराने आता है। लोग अक्सर कहते हैं कि बारिश अपने साथ कई प्रकार की खुशियाँ, आशाएं, उत्साह, उमंग, प्रेरणा, अवसर लेकर आती है। बारिश के मौसम में प्यार की एक अलग ही अनुभूति होती है। इस मौसम में कोई प्यार के रंग में डूब जाता है तो कोई दिल टूटने पर अपने आंसू को छुपाता है। ये रे पावसा मी तुला देते पैसा, पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा। अरे पहली बरसात में झूमे नाचे साथ में, ढोल नगाड़े की ताल पे। धक्कुमकुम चलो सारे धक्कुमकुम मिलके हम बादलों को खींचे तुम। पहली बरसात में झूमे नाचे साथ में, ढोल नगाड़े की ताल पे। अरे आ जाना नायन को बोल, आ जाना नायन को बोल। अरे चंगाड़ी नायन को बोल, आ जाना नायन को बोल। नहीं तो तुझा बैला धक्कुमकुम चलो सारे धक्कुमकुम मिलके हम बादलों की खींचे तुम। पहली बरसात में झूमे नाचे साथ में, ढोल नगाड़े की ताल पे। बरसो
Every day is a new beginning. Take a deep breath, smile, and start again. सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। जो की पहली ताल है, आहा सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। पाके हमें जिंदगी एक बार, क्यों न करे कोई कि हम इसका प्यार, जाने किसका है हमें इंतजार, कि जिंदगी सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की अब है ये किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। थैंक यू गतिक, तुमने हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशंस दी। तो नेक्स्ट ईयर से हम भी अराइज इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लेंगे एंड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर वी ऑल आर अराइजियंस। Arise International School is focusing on values and skill that contribute to building a better society. The school is preparing students to become responsible, compassionate, and innovative leaders of tomorrow. पावन हो धरती माँ, निर्मल हो धरती माँ, हमें रब को बुलाना है, स्वच्छ भारत बनाना है। पृथ्वी है जीवन का मूल, इसका महत्व न भूल, इसकी सुरक्षा में जुटे हम सब, यही बने हमारा उसूल। पृथ्वी हमारा घर है प्यारा, इस पर सबका अधिकार है, इसकी सुरक्षा में जुटे हम सब, यह सब पर भार है। आने वाली पीढ़ी को रखना है सुरक्षित, पृथ्वी को बचाना है हमारा कर्तव्य अनुचित। माँ जैसा व्यवहार करे इस धरती के संग, हरी भरी बनाकर इसे हो खुशहाली का रंग।
जब पृथ्वी होगी हरी भरी सुंदर और शांत, जनता भी होगी स्वस्थ और मन में उमंग संत, तो सब आओ आगे धरती को बचाए, मिलकर स्वच्छ भारत स्वच्छ धरती का सपना सजाए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी स्वच्छता चारों ओर, होगी स्वच्छता चारों ओर, होगी स्वच्छता चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी स्वच्छता चारों ओर एक दिन। कचरा ना फैलाओ साहिबान, ये है स्वच्छ भारत अभियान, होगा स्वच्छ हमारा देश एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, और भी होगा स्वच्छ देश एक दिन।
Good evening, everyone. I am Pratik Omkar Chotimat from grade 8th. I take this opportunity to express my heartfelt gratitude to our esteemed guests, parents, teachers, and my dear friends. This occasion, with your presence and making this event a resounding success, your support and encouragement mean world to us. And we hope you enjoyed the show and will carry forward the message we shared tonight. A special thanks to our crew members of Dance and Tone, Sagar sir, Rizwan sir, Ayushi ma'am, Vicky sir, Yuvraj sir, and our school dance teachers, Rahul sir and Suraj sir, for their dedicated efforts in teaching us and organizing this fabulous show. I extend my gratitude to our art teacher Santosh Mankar sir and his talented team for creating these props and decorating the stage so beautifully. A big thank you to our admin team, Farman sir, Yogesh sir and Saurabh sir for their seamless coordination for making this event possible. We are also deeply grateful to PCMC for their support in providing e-toilets for the event. A special note of thanks to our neighboring societies for their understanding and patience during our practice sessions. Last but not least, I thank our teachers and staff for their unwavering patience, guidance, and tireless efforts behind the scenes. Thank you all for your enthusiasm, encouragement, and invaluable support. We look forward to your continued encouragement in all our future endeavors. Thank you. I request you all to stand up for Vande Mataram. श्यामला मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे